Good morning everyone, and today we are going to discuss different methods of curve draw on field. So we already cover the few one, that is the offsets from tangent points. So here, so we already cover some of the methods which is offsets. Okay, so these offsets may be your perpendicular and another one is your radial. So this offset is taken from the back tangent. Okay, so this is the tangent point, here the T1 point, this is the intersection point I, and here the T2 point. So these two methods are taken from the T1 to I method. Like this is, I am taking offsets from the back tangent. This is the perpendicular offsets, right? This T1 to I is my back tangent, right? The another method is radial method. In this method, I am taking the same offsets like tangent point 1, intersection point, and here we have a curve T2. So this is our back tangent, but in this case I am going to take my radial offsets. Okay, and these are toward the center of the point, or we can say this is merging on a single point, which is the center of this curve, this simple circular curve. So these are the two methods we already covered. In this lecture we are going to discuss offsets from the long chord method, right? So I'll just take here. So my another method, which is C type, it is offsets from the long chord, right? So these offset is measured from the tape, right? That is known as tape and chain method. This type of method is also known as chain and type method because we are using only single chain as well as single tape. So first of all, we have to understand what is long chord. Long chord. So if this is the starting point of curve, tangent point 1, back tangent, this is the tangent, back tangent meeting with the point which is known as intersections, and here my tangent point 2, right? We already know this. From T1 we have a circular curve like, and it is merged at T2. So this is my curve, right? So this is my circular curve, and if I take distance like this, T1 to T2 via this B point, so this is known as arc. So I can say this is arc T1 B T2. But if I join a line like this, so this is the line, so line T1 to T2 is known as chord, right? So what is the longest chord? If my T1 to T2 is the circular curve, is the only circular curve, or we can say it is a part of circular curve, so the longest chord is here T1 to T2, right? तो ये हमें longest chord मिल गई. Now how we perform this method on ground? Just take 2 points. This is point A and this is point B, right? This is the longest chord of the circular curve, so I can take a line on the field like this, right? So the length of this chord is L, so the length AB is equal to L. So at the midpoint, if this is the midpoint of the chord M is the midpoint of chord AB, and I have to identify this one point which is B point.
right? Okay, so my aim in this, we have a draw AB line which is the longest chord, then we have to find the distance of BM. My aim is we have to find distance of MB or BM, that is called your we can say that is this is your X distance, right? तो मेरा एम यहाँ पे ये है फील्ड में कि मुझे ये X डिस्टेंस निकालनी। इसी तरीके से फिर मैं इस मिड पॉइंट से यहाँ मूव करूंगा Y मीटर, और फिर Y मीटर मूव करने पे फिर मैं ये पॉइंट निकालूंगा विच इज माई अगेन इसको हम पॉइंट अच्छा हमने यहाँ पे B ऑलरेडी नोट कर दिया है तो हम इसको B1 लिख लेते हैं, इसको हम B2 लिख लेते हैं, ठीक है। सो A से B हमारी L है और M से B1 हमारी X है। सिमिलरली फिर हमें M2, इसको हम M1 ले लेते हैं। इसी तरीके से हमें M2 और B2 फाइंड करना है जो हमारा X2 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने नॉमेनक्लेचर दे दिया। फिर वहां से ठीक है Y2 मूव करा तो ये डिस्टेंस आया। फिर हमने क्या मूव करना है, मिड पॉइंट से Y3 मीटर मूव करना है लॉन्गेस्ट कॉर्ड की डायरेक्शन में और A की डायरेक्शन में, और जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आएगा वो हमारा M3 आया, Y3 डिस्टेंस पे M3 आया, और यहाँ से जो हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना था वो हमें फाइंड करना है B3। सो बेसिकली हम यहाँ पे X3 फाइंड करेंगे, ठीक है। सो दीज आर माय कोऑर्डिनेट्स X1, X2 एंड X3। और ये जो ऑफसेट्स हैं ये परपेंडिकुलर ऑफसेट्स हैं। ये परपेंडिकुलर ऑफसेट्स किस पे हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड पर है। तो यही हमें आइडेंटिफाई करना है। और अगर मुझे B1, B2, B3 पॉइंट मिल जाएंगे, तो अगर ये मुझे ये पॉइंट्स मिल जाएंगे B1, B2 एंड B3, तो मैं क्या करूँगा, इसको A से कनेक्ट करूँगा लास्ट में फाइनल आंसर फील्ड में, इस तरीके से, ठीक है। तो ये मेरा हाफ कर्व बन गया। सिमिलरली जब मैं यहाँ से यहाँ मूव करूँगा Y2 डिस्टेंस, ठीक है, और मिड पॉइंट से फिर से मैं यहाँ मूव करूँगा Y3 डिस्टेंस, तो मेरे पास तो ऑलरेडी से पॉइंट पता होंगे किसके, X1 पता होगा, X2 पता होगा, X3 होगा। तो मिड पॉइंट के बाद, मिड पॉइंट के सेकंड हाफ में हमारे पास ऑलरेडी जो ये डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस हमें यहाँ भी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। इस तरीके से हम ये पॉइंट आइडेंटिफाई कर लेंगे यहाँ पे, जैसे कि M3 और B3 का जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा। सिमिलरली M2 और B2 का जो पॉइंट होगा यहाँ पे होगा, और इस पॉइंट्स को हम ऐसे कवर करते हुए मैच कर देंगे B पॉइंट से। तो ये जो हमारी कर्व है ये बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर होता है लॉन्ग कॉर्ड मेथड में। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज ये होगा कि हाउ वी विल फाइंड दिस वैल्यू ऑफ X1, X2 एंड X3। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और ये कैलकुलेशन मैं आपको एक अलग फिगर में दिखाता हूँ। और अलग फिगर का मतलब ये है कि हम थोड़ा से दूसरे पेज में कर लेते हैं, राइट। सो वी हैव A एंड B, राइट। अब A और B हमारे पास पता है, ठीक है। इसका मिड पॉइंट हमें M1 ले लिया है, और यहाँ पे हमने इसका जो पॉइंट है वो हमने B1 ले लिया है, राइट। सो वी ऑलरेडी नो द रेडियस हमारा क्या होगा, R होगा, जो कि मीट करेगा O पॉइंट से, तो दिस इज द R। सिमिलरली B1 से O तक जो डिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी, आपकी R वैल्यू होगी, ठीक है। तो B1 से आपकी क्या हो जाएगी, O तक, वो भी R जाएगी। मैं यहाँ पे अलग से B1 से O भी आपका क्या है, रेडियस है, बिकॉज एक कर्व है, ठीक है। तो हम यहाँ पे B1 और M1 को फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस R। अब देखिए ट्रायंगल क्या लेंगे हम, ट्रायंगल AM1 एंड O लेंगे, ठीक है। तो ये राइट एंगल्ड है, दिस इज द राइट एंगल्ड एट M1 हो गया, ठीक है। M1 क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को लूंगा तो इसमें मेरे पास A से O रेडियस है, A से M1 तक जो डिस्टेंस है वो हमारी L/2 है, और ये L क्या है, AB की जो डिस्टेंस है वो हमने क्या लेगी, लेंथ ले रखी है। तो AM1 क्या हो जाएगा, AB/2 हो जाएगा। इसीलिए हमारे पास AM1 क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। ये आपको हमने ऊपर भी दिखा रखा है, ये ऊपर हमने पहले ही मेंशन किया था, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड वैल्यू इज L। तो ये हमारा L हो गया। अब इस ट्रायंगल में अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ OM1, ठीक है।
ओ m1 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस ए m1 स्क्वायर विच इज l/2 स्क्वायर, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से m1 से o के बीच की डिस्टेंस आ गई। ठीक है, अब b1 एंड o क्या है, इट इज अ समेशन ऑफ b1 m1 प्लस m1 o, और m1 o की आप ऑलरेडी डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड कर चुके हो, अगर आप ध्यान देंगे। बस आपके पास m1 और b1 और m1 आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। तो b1 से o की डिस्टेंस आपके पास रेडियस है, इक्वल टू b1 m1। अब b1 और m1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x1 लिख सकता हूँ। ठीक है, x1 प्लस m1 और o को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट r स्क्वायर माइनस l/2 का होल स्क्वायर। राइट, फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x1। तो यहाँ पे मेरी x1 की जो वैल्यू आई है वो आई है r माइनस अंडर रूट r स्क्वायर माइनस l/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिल चुका है। तो ये मेरा x1 मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है अपना। ठीक है, तो x1 मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया है। राइट, अब हमें आइडेंटिफाई करना है x2, और x2 हमारा कहाँ पे है, x2 हमारा यहाँ पे है। ठीक है, कौन सा पॉइंट है ये पॉइंट है हमारा m2, और ये डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से यहाँ, मैं इसको अलग कलर से डिनोट कर रहा हूँ। दिस इज माई y2 डिस्टेंस। ठीक है, तो y2 डिस्टेंस मैं मूव किया मिड पॉइंट से इन दिस डायरेक्शन में, तो मुझे x2 की डायरेक्शन, x2 की डिस्टेंस पता करनी है। अब कैसे पता करेंगे, इसके लिए फिर से हमें थोड़ा सा फिगर में चेंजेस करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एक नया फिगर फिर से बनाते हैं। तो फिर हम एक नया फिगर फिर से बनाने हैं। तो ये हमारा a है, दिस इज माई b, दिस इज माई m1 पॉइंट, दिस इज माई m2 पॉइंट, एंड द डिस्टेंस इज, यहाँ से यहाँ क्या है, y2 है। राइट, मेरा एम क्या है, मेरा एम यह है b2 पॉइंट को फाइंड करना, विच इज योर x2 पॉइंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इसको एक्सटेंड करूँ नीचे, चलो दूसरे कलर से एक्सटेंड करेंगे इसको हम। तो अगर मैं इसको नीचे तक एक्सटेंड करूँ इस तरीके से, तो यहाँ पे मेरा कहीं पे कोई सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे x2 डिस्टेंस निकालनी है। कैसे करना है, तो x2 डिस्टेंस निकालने के लिए क्या है, मैं यहाँ से इस लाइन को इमेजिनरी देके इसको मैं इस तरीके एक्सटेंड कर रहा हूँ, और इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे D पॉइंट। ठीक है, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी है, यह डिस्टेंस हमें ऑलरेडी पता है, दिस इज अ y2। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको ये B2 पॉइंट भी जो है वो सर्कुलर कर्व के ऊपर है, यानी कि B2 से O की डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस होगी। तो B2 से O की डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस होगी। और अब अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन चुका है हमारे पास। दिस ट्रायंगल इज लाइक दिस, B2O एंड D। तो ये ट्रायंगल बन चुका है, इस ट्रायंगल को मैं अलग से ले रहा हूँ। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को जब मैं अलग से ले रहा हूं तो मेरे को यहाँ पे पता चल रहा है कि B2O की डिस्टेंस कितनी है, R है। DO की डिस्टेंस क्या है, Y2 है। देखो ट्रायंगल कौन सा लिया हमने, B2DO, वेयर एंगल D इज 90 डिग्री। राइट, आपके लिए थोड़ा सा इसको फिर से हाईलाइट कर देते हैं, ये वाला, और यहाँ पे आपका बेस आ गया। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो DO की वैल्यू हमारे पास y2 है, जो कि हम खुद से मूव करे हैं। तो अब हमें फाइंड करना है B2D फाइंड करना है। अब B2D का स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर B2O का स्क्वायर माइनस बेस यानी कि DO का स्क्वायर। ये पाइथागोरस के अकॉर्डिंग है। B2D, ठीक है, B2D को हम क्या लिख सकते हैं, B2D को अभी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, B2D विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ BDO, सॉरी B2D को हम इस तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ B2O का होल स्क्वायर। B2 से O की डिस्टेंस क्या है, रेडियस है, दिस इज द रेडियस डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक क्या है, रेडियस है, तो हम ये लिख सकते हैं रेडियस का स्क्वायर
माइनस डी ओ का स्क्वायर। अब डी ओ क्या है हमारे पास, डी ओ हमारे पास सेम वही है y2 जो हम खुद से मूव कर रहे हैं, जिस पॉइंट से हम ऑफसेट्स ले रहे हैं, तो d2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास b2d की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन यहाँ से भी हमारी x2 की वैल्यू नहीं निकली है। अब हमारी x2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, b2d को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। एक तो हमारा है b2m2 और प्लस एक है हमारा m2d हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग b2m2 हमारे पास x2 है प्लस m2 और d। अब देखिए m2 से d तक की डिस्टेंस उतनी ही होगी जितनी m1 से o तक की डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि m2 से d की डिस्टेंस उतनी होगी जितनी m1 से o की डिस्टेंस है। राइट, तो हम अगर एक्सप्रेशन को मैं राइट हैंड साइड में लिखूं तो ये इस तरीके से होगा x2 प्लस m1o विल बी इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और x2 इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस y2 का होल स्क्वायर माइनस m2o। राइट, अब ये m2o की वैल्यू हम पुराने वाले फिगर में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने यहाँ पे m1o की वैल्यू, ठीक है, m1o की वैल्यू हम यहाँ पे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये देखिए m1o की वैल्यू क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस l/2 का होल स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ से ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसकी वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे ये क्या है, ये m1 है। ये देखिए m1 है, तो यही यहाँ पे क्या है, m1 है। तो m1o की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो हमने प्रीवियस केस में निकाला था, ये तो ऐसा का वैसा ही रहेगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस l/2 का होल स्क्वायर। सो इस तरीके से हमारा x2 निकल गया। अब इसी केस से अगर मुझे x3 निकालना है तो x3 के लिए क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस y3, जितना डिस्टेंस आप y3 गए माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस l/2 का होल स्क्वायर। सो बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द मेन फॉर्मूला। ठीक है, आपको यही याद रखना है। अब इस मेन फॉर्मूले को हम इस तरीके से ले सकते हैं, x आयोटा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस y आयोटा का स्क्वायर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस l/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ चीजें आपको ध्यान देखने वाली बात यह है कि l/2 आपके पास क्या होगा, दिस इज द हाफ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये आपको पता होगा। रेडियस ये आपको पता होगा, रेडियस ये भी आपको पता होगा। सिर्फ आपकी जो x की वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ आपके y की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। नाउ मूव टू द फिगर। अगर मैं इस फिगर के अकॉर्डिंग मूव करूं तो अगर आप देखेंगे कि y की जो वैल्यू ले रहे हैं वो मिड पॉइंट से ले रहे हैं, तो यानी कि y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम y की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक हो सकती है। यानी कि आई कैन से दैट माय y वैल्यू कैन बी मैक्सिमम फ्रॉम m पॉइंट टू m1 से a तक। ठीक है, अब m पॉइंट पे अगर y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और m1 से a तक की वैल्यू क्या है, l/2 है। तो y की वैल्यू क्या हो रही है, 0 से l/2 मूव कर रही है। राइट, तो ये आपको समझ में आ गया। अब फिगर में चलते हैं, फिगर में चले। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम एक और फिगर बना लेते हैं ताकि आपको इजीली डिस्क्राइब हो जाए पूरा का पूरा। अब देखिए m1 पे y की वैल्यू क्या है, m1 पे y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो अगर आप इस वैल्यू में इसको 0 रख देंगे तो आपका ये जो डिस्टेंस आई है ऑफसेट, कौन सी ऑफसेट है ये, दिस इज द ऑफसेट। मैं इसको दूसरे कलर से, दिस इज द ऑफसेट्स टेकन फ्रॉम द लॉन्गेस्ट कॉर्ड विच इज AB and it is start from the midpoint of the chord, the midpoint of the chord is m1। तो ये जो है डिस्टेंस, इससे मैंने क्या पॉइंट मेजर किया, B1 पॉइंट को मेजर किया। अब ये B1 पॉइंट कितनी दूर है, यही मुझे फील्ड में
पता होना चाहिए वो मैंने कैलकुलेट किया ऊपर वाले फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले में मैंने y की वैल्यू क्या है 0 रख दी, तो यहाँ पे जो x1 आया इसकी वैल्यू आप देख सकते हो कि इट विल बी r स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर l/2 का होल स्क्वायर, तो ये इक्वल टू हो जाएगा r माइनस अंडर रूट r स्क्वायर बाई l होल स्क्वायर। ठीक है, तो दूसरी वैल्यू है जिसमें मैंने x मूव किया तो उसकी मैं वैल्यू यहाँ पे रखूंगा। लेकिन मैं आपको एक थर्ड केस बता रहा हूँ जिसमें मैं यहाँ तक पहुंच गया, यानी कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी l/2 हो जाएगी। तो अब इस इक्वेशन में जो ऊपर की इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन में आपने क्या करना है, y की वैल्यू को क्या रखना है l/2 रखना है। तो हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस l/2 का, देखो y की जगह पे हमने क्या रखा l/2 रखा माइनस आर स्क्वायर, अब ये जो पूरा का पूरा है तो वैसी का वैसी आएगा l/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये इससे ये कैंसिल हो गया, यानी कि x इक्वल टू 0 हो गया। और अगर आप फिगर में देखेंगे कि तो x क्या है, x एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ मूव करने की, लेकिन इस केस में x इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, यानी कि यहाँ पे कोई भी परपेंडिकुलर ऑफसेट्स नहीं होगा फ्रॉम द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। और होता भी ऐसी है क्योंकि आपका जो कर्व है वो a पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो जब आपका कर्व a पॉइंट से स्टार्ट होगा तो कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगी एट द एंड ऑफ कॉर्ड। तो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस लॉन्गेस्ट कॉर्ड मेथड। और आपने देख भी लिया होगा कि फील्ड में कैसे करना है। फील्ड में सिर्फ आपको 2 पॉइंट दिए रहेंगे, एक पॉइंट आपका स्टेशन ए होगा, एक स्टेशन आपका बी होगा। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आप चेन से मेजर कर लोगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ चेन ये मेजर कर लोगे। चेन को आप से मेजर करने के बाद आप फिर सेंटर पॉइंट आइडेंटिफाई करोगे विच इज योर m1 पॉइंट। m1 से फिर आप एक परपेंडिकुलर ऑफसेट मारोगे वो है x1, फिर आप m1 से ही मूव करोगे y डिस्टेंस और वहां से फिर से एक परपेंडिकुलर ऑफसेट मारोगे जो x2 होगा। अब x1 x2 एंड x3 एंड सो ऑन, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने बार कर रहे हो उसको, कितनी कैलकुलेशंस कर रहे हो। और अगर आप ज्यादा कैलकुलेशन करोगे तो जो आपका कर्व है वो ज्यादा अच्छा बनेगा। अगर आप कम कैलकुलेशन करोगे तो देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 कैलकुलेशन करे, तो जब मैं इसको अटैच करूंगा तो मेरा ये परफेक्ट ऐसे करके आएगा। लेकिन अगर मेरे पास नंबर ऑफ कैलकुलेशंस होगी x की, ठीक है, तो ये m है, तो इस तरीके से अगर मेरे पास x की बहुत सारी कैलकुलेशन होगी, ये तो मैं क्या करूंगा, मेरा कर्व बहुत अच्छा बनेगा, एक एक्यूरेसी आएगी मेरे कर्व में, राइट। So this is basically the concept to identify the value of x1। ठीक है, जितनी ज्यादा आप x1 निकालोगे उतने आपका कर्व क्या होगा, एक्यूरेट होगा। So this is all about the long offsets from the long chord method. I hope you enjoy this. Thank you. Have a nice day.